अच्युत गोपी माता जी को हैदराबाद में एक बड़े प्रोग्राम को करने से रोक दिया गया। आखिर कौन है वो लोग जिन्होंने उनके प्रोग्राम को 2 घंटे पहले ही कैंसिल करवा दिया? आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अच्युत गोपी माता जी अभी हाल फिलहाल में इंडिया आई हुई हैं और एक न्यूज चैनल को दिए गए इंटरव्यू के दौरान उन्होंने ये बताया कि वो इंडिया में अलग अलग जगहों पर टूर करके हरिनाम संकीर्तन के कॉन्सर्ट कर रही हैं। उन्होंने अपने इंटरव्यू में बताया कि चलमन वृंदावन ने उन्हें इंस्टाग्राम पर कांटेक्ट किया और उन्हें इंडिया में कॉन्सर्ट करने के लिए कहा। आप खुद ही सुन लीजिए। So somehow I tried to chase her, mail her, message her, DM her that I think we can do this together because I know for a reason that she also has the same thought that she wants to do something for our culture, for our temples, and as she is born and raised Vaishnava, I thought we can do something together. And then somehow things aligned and we thought that let's just start this organization called Chalman Vrindavan and let's do something for India and for the temples here. उन्होंने कहा कि बहुत लोग कॉन्सर्ट करते हैं और बहुत पैसा कमाते हैं, उस पैसे को लेकर के वो अपने देश जाते हैं और उससे एंजॉय करते हैं। लेकिन जब चलमन वृंदावन ने अच्युत गोपी माता जी से कांटेक्ट किया और उन्हें बताया कि वो इस धन का उपयोग, जो कॉन्सर्ट से जो पैसा आएगा उसका उपयोग वृंदावन में जो छोटे छोटे मंदिर हैं जो विलुप्त हो चुके हैं, जिनकी इंस्टाग्राम पर कोई फैन फॉलोइंग नहीं है, उन मंदिरों का जीर्णोद्धार करने के लिए, उन मंदिरों को हेल्प करने के लिए ये पैसा वहां पर डोनेट किया जाएगा, स्पेशली दाऊजी के मंदिर में। और ये बात जब अच्युत गोपी माता जी ने सुना तब वो इसके लिए राजी हो गई। Many people, many bands, many musicians, they'll come to India, they will do a tour, they take all of the money and then they leave. They go back to where they come from. And for me, this was an opportunity to raise funds and then put it back into spiritual, cultural preservation and cultural heritage. So for me, this was an instance to be able to take so many funds and pour them back into religious places like Sri Vrindavan Dham, which absolutely needs these funds because this is a land of 5,000 temples. What happens for the temples that are not on Instagram? What happens to the small temples who are not known so widely? What happens to the temples that are not visited by big people? What happens to Thakurji there? Is it not the same Thakurji that is in every single temple? So my aim and my hope in creating such a space with music and with kirtan was to raise funds that contribute to cultural preservation. बस इसके बाद इंडिया के बड़े बड़े शहरों में लाइव कॉन्सर्ट को बुक किया गया। बहुत सारी जगहों पर प्रोग्राम बहुत अच्छे से हुए, लेकिन जब बात आई हैदराबाद की तो वहाँ पर प्रोग्राम के सिर्फ 2 घंटे पहले ही उन्हें खोल से पता चला कि प्रोग्राम को रोकना पड़ेगा। और आगे की बात आप खुद ही सुन लीजिए। For us it was a surprise, shocking surprise that 2 hours before the concert was supposed to start because the doors had already opened, our permission was rejected and we got a call that there'll be stampede and situations where police will not be able to control. My responsibility as a citizen of this country is to be able to do something that can give right things to people like her if they are coming all the way from US to our country to push our culture, to tell people about Krishna consciousness or consciousness for that matter. My question is, why would you stop us? We are promoting our culture. You can see so many other concerts are being promoted where there are many activities that we should not be doing on our part, but still we were revoked. There was nothing in that matter which was wrong. तो मेरा पॉइंट ये है कि हमारे देश में आईपीएल खेला जाता है, उसके लिए बहुत भीड़ होती है, पॉलिटिशियंस की रैलियां निकलती है, मूवीज के प्रीमियर शो किए जाते हैं, वहां पर बहुत भीड़ होती है, लाखों लोग आते हैं, उनको तो आप परमिशन दे देते हैं। लेकिन जब बात आती है भगवान के नाम की, हरिनाम संकीर्तन की या सनातन धर्म की, तब आप जो है ये प्रोग्राम्स को रोक देते हैं। ये भेदभाव क्यों है? इस न्यूज को सुनने के बाद वहां के लोग बहुत दुखी हुए और वापस लौट गए। इसीलिए वृंदावन के देवकी नंदन ठाकुर जी सही कहते हैं कि सनातन बोर्ड होना चाहिए और जो उनकी ये मांग है, जिसके लिए वो प्रयास कर रहे हैं, उसको हमें सबको समर्थन करना चाहिए। लेकिन समर्थन कैसे करें? समर्थन करने वाले ही आपस में भेद रखते हैं। आए दिन इंटरनेट पर, सोशल मीडिया पर हम देखते हैं कि एक भक्त ने किसी दूसरे भक्त के बारे में कुछ कह दिया, दूसरे भक्त ने किसी तीसरे भक्त के बारे में कुछ कह दिया और उसके ऊपर कंट्रोवर्सी क्रिएट हो जाती है, वाद विवाद क्रिएट हो जाता है और उसके ऊपर सब लोग अपना अपना वीडियो बना के डाल रहे हैं। तो जब हम लोगों में ही एकता नहीं है तो फिर हम सनातन बोर्ड को कैसे समर्थन कर पाएंगे? और इसी कारण से देवकी नंदन ठाकुर जी ने कुछ समय पहले सनातन सम्मेलन आयोजित किया था, जिसमें सभी सनातनियों को बुलाया था और बहुत लोग वहां पर आए भी थे एकता के लिए, और चाहे जो बात हो। लेकिन देवकी नंदन ठाकुर जी ने कम से कम सभी लोगों को एक सूत्र में बांधने का प्रयास तो किया था। उसी तरह से अच्युत गोपी माता जी, जो कि इस्कॉन से जुड़ी हुई है, जब उनसे इंटरव्यू में पूछा गया कि आप क्या सोचती हैं, आप इतना अच्छा गाती हैं, भगवान की आपके ऊपर असीम कृपा है, लोग आपको इतना फॉलो करते हैं, इतना मानते हैं, तो इसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे?
तो उनका उत्तर जरा आप सुनिए। I show up, I open my mouth, and I pray from the core of my heart. Oh my Lord, I have been yours since the day I was born. If you want something to happen, then you make it happen. I can't do it. I am one small person. I'm not even 5 feet tall. But if you want something to happen, you can make it as big as you want, my Lord. I'm in your hands. Everyone who has come here has come to see you, not me. If you see anything good in me, it is just an effulgence of my spiritual master and of Shri Krishna. So anybody that's seeing me and thinks, wow, she's done something amazing, what you're seeing is Krishna's mercy. You are seeing God live in action. And that's what I saw in Bangalore. Bangalore, I got to see Krishna 1,000 different ways. From every single heart, shouting loud as they could from the crowd, Mataji, we are with you. Mataji, we are not afraid of anything. Roaring back about Lord Nrsimha, roaring back about Jai Shri Ram. How can I say that I have any loss of faith in Krishna when he's shown me himself in 1,000 different ways from so many different hearts? तो मैं अच्युत गोपी माता जी और उनके जैसे अनेक भक्तों को प्रणाम करता हूं जो इस प्रकार के कार्य करने के लिए सेवा भाव से आगे आते हैं, क्योंकि आजकल बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हैं जिनके पास बहुत पैसा है, नाम है, शोहरत है, बहुत पैसे वाले लोग पड़े हैं हमारे भारत में, लेकिन कोई भी एक पैसा नहीं देना चाहता है। बड़ी बड़ी मूवीज रिलीज होती है, वो बहुत पैसा कमाती है, लेकिन उसका प्रॉफिट कोई भी शेयर नहीं करना चाहता, कोई भी कुछ डोनेट नहीं करना चाहता। लेकिन सिर्फ एक भक्त ही ऐसा होता है जो अपने सेवा के माध्यम से, अपने कार्यों के माध्यम से सब कुछ डोनेट करना चाहता है, सब कुछ दान करना चाहता है, लोगों की सेवा करना चाहता है। इसलिए हमारे असली हीरो तो ये लोग हैं, अच्युत गोपी माता जी जैसे लोग, जो पहले तो अपने हरिनाम संकीर्तन के माध्यम से लोगों का मन शुद्ध कर रहे हैं, चित्त शुद्ध कर रहे हैं, और ऐसे प्रोग्राम्स से अगर कोई धन आता भी है तो उसे अपने पास नहीं रख रहे हैं, मंदिरों को डोनेट कर रहे हैं, लोगों की सेवा कर रहे हैं। आज के समय में ऐसे लोगों की, ऐसे भक्तों की बहुत जरूरत है हमारे भारत देश में। हमारी भारतीय संस्कृति को हमारे ही लोग भूलना तो छोड़ो, वो मंदिर जाना पसंद नहीं करते, कथा सुनना पसंद नहीं करते। और ये माताजी जैसे लोग जो कि भारत के नहीं हैं, विदेश में पैदा हुए हैं, लेकिन हमारी भारतीय संस्कृति को इतने अच्छे से अपनाया है कि उसका वो प्रचार कर रहे हैं। हम ही भारतीय लोगों को, हमें उनसे कुछ सीखना चाहिए। भक्तों के जो अच्छे गुण हैं उन्हें हमें ग्रहण करना चाहिए। आप क्या सोचते हैं इस वीडियो के बारे में, मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। सामने आ रहा है इस वीडियो को क्लिक करके जरूर देखिए। मैं आपसे वहीं मिलूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।